1 year Bible reading plan। 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, 1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान। मैथ्यू 9 चैप्टर 18 to 38 वर्ड्स, जेनेसिस 29 चैप्टर और 30 चैप्टर। 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय 18 से 38 वचन तक और उत्पत्ति 29 अध्याय और 30 अध्याय। हम इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे, हिंदी में BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। मैथ्यू 9 चैप्टर 19 to 38 वर्स। And Jesus arose and followed him, and so did his disciples. And behold, a woman which was diseased with an issue of blood 12 years came behind him, and touched the hem of his garment. For she said within herself, If I may but touch his garment, I shall be whole. But Jesus turned him about, and when he saw her, he said, Daughter, be of good comfort, thy faith hath made thee whole. And the woman was made whole from that hour. And when Jesus came into the ruler's house and saw the minstrels and the people making a noise, he said unto them, Give place, for the maid is not dead, but sleepeth. And they laughed him to scorn. But when the people were put forth, he went in and took her by the hand, and the maid arose. And the flame hereof went abroad into all that land. And when Jesus departed thence, 2 blind men followed him, crying and saying, Thou son of David, have mercy on us. And when he was come into the house, the blind men came to him, and Jesus saith unto them, Believe ye that I am able to do this? They said unto him, Yea, Lord. Then touched he their eyes, saying, According to your faith be it unto you. And their eyes were opened, and Jesus straightly charged them, saying, See that no man know it. But they, when they were departed, spread abroad his fame in all that country. As they went out, behold, they brought to him a dumb man, possessed with a devil. And when the devil was cast out, the dumb spake, and the multitudes marveled, saying, It was never to see in Israel. But the Pharisees said, He casteth out devils through the prince of the devils. And Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people. But when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them, because they fainted and were scattered abroad, as sheep having no shepherd. Then saith he unto his disciples, The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय 19 वचन से 38 वचन तक। यीशु उठकर अपने चेलों समेत उसके पीछे हो लिया, और देखो, एक स्त्री ने, जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया, क्योंकि वह अपने मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी। यीशु ने फिरकर उसे देखा और कहा, पुत्री, ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। अतः वह स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। जब यीशु उस सरदार के घर में पहुंचा और बांसुरी बजाने वालों और भीड़ को हुल्लड़ मचाते देखा, तब कहा, हट जाओ, लड़की मरी नहीं पर सोती है।
इस पर वे उसकी हंसी करने लगे। परंतु अब भीड़ निकाल दी गई तो उसने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वह जी उठी, और इस बात की चर्चा उस सारे देश में फैल गई। 2 अंधों को दृष्टिदान। जब यीशु वहाँ से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे यह पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। जब वह घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो, और उनकी आंखें खुल गई। यीशु ने उन्हें चिताकर कहा, सावधान, कोई इस बात को न जाने। पर उन्होंने निकलकर सारे देश में उसका यश फैला दिया। एक गूंगे को चंगा करना। जब वे बाहर जा रहे थे तो देखो, लोग एक गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास लाए, और जब दुष्ट आत्मा निकाल दी गई तो गूंगा बोलने लगा। इस पर भीड़ ने अचंभा करके कहा, इस्राएल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। परंतु फरीसियों ने कहा, यह तो दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। मजदूर थोड़े हैं। 35 वचन से आगे। यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला न हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत हैं, पर मजदूर थोड़े हैं। इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। Genesis chapter 29. Jacob, coming to the well of Haran, meeteth Rachel and is entertained by Laban. He covenanteth for her. He is deceived with Leah. Rachel also given him to wife on a new agreement. Leah beareth Reuben, Simeon, Levi and Judah. First verse से पढ़ेंगे. Then Jacob went on his journey and came into the land of the people of the east, and he looked, and behold, a well in the field, and lo, there were 3 flocks of sheep lying by it. For out of that well they watered the flocks, and a great stone was upon the well's mouth, and thither were all the flocks gathered, and they rolled the stone from the well's mouth, and watered the sheep, and put the stone again upon the well's mouth in his place. And Jacob said unto them, My brethren, whence be ye? And they said, Of Haran are we. And he said unto them, Know ye Laban the son of Nahor? And they said, We know him. And he said unto them, Is he well? And they said, He is well. And behold, Rachel his daughter cometh with the sheep. And he said, Lo, it is yet high day, neither is it a time that the cattle should be gathered together. Water ye the sheep, and go and feed them. And they said, We cannot until all the flocks be gathered together, until they roll the stone from the well's mouth, then we water the sheep. And while he yet spake with them, Rachel came with her father's sheep, for she kept them. And it came to pass, when Jacob saw Rachel the daughter of Laban his mother's brother, and the sheep of Laban his mother's brother, that Jacob went near and rolled the stone from the well's mouth, and watered the flock of Laban of his mother's brother. And Jacob kissed Rachel, and lifted up his voice, and wept. And Jacob told Rachel that he was her father's brother, and that he was Rebekah's son.
And she ran and told her father. And it came to pass, when Laban heard the tidings of Jacob his sister's son, that he ran to meet him and embraced him and kissed him and brought him to his house. And he told Laban all these things. And Laban said to him, Surely thou art my bone and my flesh. And he abode with him the space of a month. And Laban said unto Jacob, Because thou art my brother, shouldest thou therefore serve me for naught? Tell me, what shall thy wages be? And Laban had two daughters. The name of the elder was Leah, and the name of the younger was Rachel. Leah was tender-eyed, but Rachel was beautiful and well-favored. And Jacob loved Rachel and said, I will serve thee 7 years for Rachel, thy young daughter. And Laban said, It is better that I give her to thee than that I should give her to another man. Abide with me. And Jacob served 7 years for Rachel, and they seemed unto him but a few days for the love he had to her. And Jacob said unto Laban, Give me my wife, for my days are fulfilled, that I may go in unto her. And Laban gathered together all the men of the place and made a feast. And it came to pass in the evening that he took Leah his daughter and brought her to him, and he went in unto her. And Laban gave unto his daughter Leah Zilpah his maid for an handmaid. And it came to pass that in the morning, behold, it was Leah. And he said to Laban, What is this thou hast done unto me? Did not I serve with thee for Rachel? Wherefore then hast thou beguiled me? And Laban said, It must not be so done in our country, to give the younger before the firstborn. Fulfill her week, and we will give thee this also for the service which thou shalt serve with me yet 7 other years. And Jacob did so, and fulfilled her week, and he gave him Rachel his daughter to wife also. And Laban gave to Rachel his daughter Bilhah his handmaid to be her maid. And he went in also unto Rachel, and he loved also Rachel more than Leah, and served with him yet 7 other years. And when the Lord saw that Leah was hated, he opened her womb, but Rachel was barren. And Leah conceived and bare a son, and she called his name Reuben, for she said, Surely the Lord hath looked upon my affliction. Now therefore my husband will love me. And she conceived again and bare a son, and said, Because the Lord hath heard that I was hated, he hath therefore given me this son also. And she called his name Simeon. And she conceived again and bare a son, and said, Now joined unto me, because I have borne him 3 sons. Therefore was his name called Levi. And she conceived again and here bare a son. And she said, Now will I praise the Lord. Therefore she called his name Judah, and left bearing. Chapter 30. Rachel's grief for her barrenness. Bilhah beareth Dan and Naphtali. Zilpah beareth Gad and Asher. Leah beareth Issachar, Zebulun and Dinah. Rachel beareth Joseph. Jacob's new covenant with Laban, his policy to become rich. First verse. And when Rachel saw that she bare Jacob no children, Rachel envied her sister, and said unto Jacob, Give me children, or else I die. And Jacob's anger was kindled against Rachel. And he said, Am I in God's stead, who hath withheld from thee the fruit of the womb? And she said, Behold, my maid Bilhah, go in unto her, and she shall bear upon my knees, that I may also have children by her. And she gave him Bilhah her handmaid to wife. And Jacob went in unto her. And Bilhah
conceived and bare Jacob a son. And Rachel said, God hath judged me, and hath also heard my voice, and hath given me a son. Therefore called she his name Dan. And Bilhah, Rachel's maid, conceived again and bare Jacob a second son. And Rachel said, with great wrestlings have I wrestled with my sister, and I have prevailed. And she called his name Naphtali. When Leah saw that she had left bearing, she took Zilpah her maid and gave her Jacob to wife. And Zilpah Leah's maid bare Jacob a son. And Leah said, a troop cometh, and she called his name Gad. And Zilpah Leah's maid bare Jacob a second son. And Leah said, happy am I, for the daughters will call me blessed. And she called his name Asher. And Reuben went in the days of wheat harvest, and found mandrakes in the field, and brought them unto his mother Leah. And Rachel said to Leah, give me, I pray thee, of thy son's mandrakes. And she said unto her, is it a small matter that thou hast taken my husband? And wouldest thou take away my son's mandrakes also? And Rachel said, therefore he shall lie with thee tonight for thy son's mandrakes. And Jacob came out of the field in the evening, and Leah went out to meet him, and said, thou must come in unto me, for surely I have hired thee with my son's mandrakes. And he lay with her that night. And God hearkened unto Leah, and she conceived and bare Jacob the fifth son. And Leah said, God hath given me my hire, because I have given my maiden to my husband. And she called his name Issachar. And Leah conceived again and bare Jacob the sixth son. And Leah said, God hath endued me with a good dowry. Now will my husband dwell with me, because I have borne him six sons. And she called his name Zebulun. And afterwards she bare a daughter, and called her name Dinah. And God remembered Rachel, and God hearkened to her, and opened her womb. And she conceived and bare a son, and said, God hath taken away my reproach. And she called his name Joseph, and said, the Lord shall add to me another son. And it came to pass, when Rachel had borne Joseph, that Jacob said unto Laban, send me away, that I may go unto mine own place and to my country. Give me my wives and my children, for whom I have served thee, and let me go, for thou knowest my service which I have done thee. And Laban said unto him, I pray thee, if I have found favor in thine eyes, tarry, for I have learned by experience that the Lord hath blessed me for thy sake. And he said, appoint me thy wages, and I will give it. And he said unto him, thou knowest how I have served thee, and how thy cattle was with me, for it was little which thou hadst before I came, and it is now increased unto a multitude. And the Lord hath blessed thee since my coming. And now when shall I provide for mine own house also? And he said, what shall I give thee? And Jacob said, thou shalt not give me anything. If thou wilt do this thing for me, I will again feed and keep thy flock. I will pass through all thy flock today, removing from thence all the speckled and spotted cattle, and all the brown cattle among the sheep, and the spotted and speckled among the goats, and of such shall be my hire. So shall my righteousness answer for me in time to come, when it shall come for my hire before thy face, every one that is not speckled and spotted among the goats, and brown among the sheep, that shall be counted stolen with me. And Laban said, behold, I would it might be according to thy word. And he removed that day the he goats that were ring-streaked and spotted, and all the she goats that were speckled and spotted, and every one that had some white in it, and all the brown among the sheep, and gave them into the hand of his sons. And he set 3 days' journey betwixt
himself and Jacob fed the rest of Laban's flocks. And Jacob took him rods of green poplar and of the hazel and chestnut tree, and peeled white streaks in them, and made the white appear which was in the rods. And he set the rods which he had peeled before the flocks in the gutters in the watering troughs when the flocks came to drink, and that they should conceive when they came to drink. And the flocks conceived before the rods, and brought forth cattle ring-streaked, speckled, and spotted. And Jacob did separate the lambs, and set the faces of the flocks toward the ring-streaked and all the brown in the flock of Laban. And he put his own flocks by themselves, and put them not in unto Laban's cattle. And it came to pass, whensoever the stronger cattle did conceive, that Jacob laid the rods before the eyes of the cattle in the gutters, that they might conceive among the rods. But when the cattle were feeble, he put them not in. So the feeble were Laban's, and the stronger Jacob's. And the man increased exceedingly, and had much cattle, and maid servants, and men servants, and camels, and asses. उत्पत्ति 29 अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। याकूब की लाबान से भेंट। पहले वचन से, फिर याकूब ने अपना मार्ग लिया और पूर्वियों के देश में आया। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मैदान में एक कुआं है, और उसके पास भेड़ बकरियों के 3 झुंड बैठे हुए हैं, क्योंकि जो पत्थर उस कुएं के मुंह पर धरा रहता था, जिसमें से झुंडों को जल पिलाया जाता था, वह भारी था। और जब सब झुंड वहाँ इकट्ठा हो जाते, तब चरवाहे उस पत्थर को कुएं के मुंह पर से लुढ़काकर भेड़ बकरियों को पानी पिलाते, और फिर पत्थर को कुएं के मुंह पर ज्यों का त्यों रख देते थे। अतः याकूब ने चरवाहों से पूछा, हे मेरे भाइयों, तुम कहाँ के हो? उन्होंने कहा, हम हारान के हैं। तब उसने उनसे पूछा, क्या तुम नाहोर के पोते लाबान को जानते हो? उन्होंने कहा, हाँ, हम उसे जानते हैं। फिर उसने उनसे पूछा, क्या वह कुशल से है? उन्होंने कहा, हाँ, कुशल से है। उन्होंने कहा, हाँ, कुशल से है। और वह देख, उसकी बेटी राहेल भेड़ बकरियों को लिए हुए चली आती है। उसने कहा, देखो, अभी तो दिन बहुत है, पशुओं के इकट्ठे होने का समय नहीं, इसलिए भेड़ बकरियों को जल पिलाकर फिर ले जाकर चराओ। उन्होंने कहा, हम अभी ऐसा नहीं कर सकते। जब सब झुंड इकट्ठा होते हैं, तब पत्थर कुएं के मुंह पर से लुढ़काया जाता है, और तब हम भेड़ बकरियों को पानी पिलाते हैं। उनकी यह बातचीत हो ही रही थी कि राहेल, जो पशु चराया करती थी, अपने पिता के भेड़ बकरियों को लिए हुए आ गई। याकूब ने अपने मामा लाबान की बेटी राहेल को और उसकी भेड़ बकरियों को देखा, तो निकट जाकर कुएं के मुंह पर से पत्थर को लुढ़काया, और अपने मामा लाबान की भेड़ बकरियों को पानी पिलाया। तब याकूब ने राहेल को चूमा और ऊंचे स्वर से रोया। और याकूब ने राहेल को बता दिया कि मैं तेरा फुफेरा भाई हूँ, अर्थात रिबका का पुत्र हूँ। तब उसने दौड़ के अपने पिता को कह दिया। अपने भांजे याकूब का समाचार पाते ही लाबान उससे भेंट करने को दौड़ा और उसको गले लगाकर चूमा, फिर अपने घर ले आया। याकूब ने लाबान को अपना सब वृत्तांत सुनाया। तब लाबान ने याकूब से कहा, तू तो सचमुच मेरी हड्डी और मांस है। और याकूब 1 महीना भर उसके साथ रहा। राहेल और लिया के लिए सेवा। तब लाबान ने याकूब से कहा, कुटुंबी होने के कारण तुझसे मुफ्त में सेवा कराना मेरे लिए उचित नहीं है, इसलिए कहे मैं तुझे सेवा के बदले क्या दूँ। लाबान की 2 बेटियां थीं, जिनमें से बड़ी का नाम लिया और छोटी का राहेल था। लिया के तो धुंधली आंखें थीं,
पर राहेल रूपवती और सुंदर थी, इसलिए याकूब ने, जो राहेल से प्रीति रखता था, कहा, मैं तेरी छोटी बेटी राहेल के लिए 7 वर्ष तेरी सेवा करूँगा। लाबान ने कहा, उसे पराये पुरुष को देने से तुझको देना उत्तम होगा, इसलिए मेरे पास रह। अतः याकूब ने राहेल के लिए 7 वर्ष सेवा की, और वे उसको राहेल की प्रीति के कारण थोड़े ही दिनों के बराबर जान पड़े। तब याकूब ने लाबान से कहा, मेरी पत्नी मुझे दे, और मैं उसके पास जाऊंगा, क्योंकि मेरा समय पूरा हो गया है। अतः लाबान ने उस स्थान के सब मनुष्यों को बुलाकर इकट्ठा किया और एक भोज दिया। सांझ के समय वह अपनी बेटी लिया को याकूब के पास ले गया और वह उसके पास गया। लाबान ने अपनी बेटी लिया को उसकी दासी होने के लिए अपनी दासी जिल्पा दी। भोर को मालूम हुआ कि यह तो लिया है, इसलिए उसने लाबान से कहा, यह तूने मेरे साथ क्या किया है? मैंने तेरे साथ रहकर जो तेरी सेवा की, तो क्या राहेल के लिए नहीं की? फिर तूने मुझसे क्यों ऐसा छल किया है? लाबान ने कहा, हमारे यहाँ ऐसी रीति नहीं कि बड़ी बेटी से पहले दूसरी का विवाह कर दे। इसका सप्ताह तो पूरा कर, फिर दूसरी भी तुझे उस सेवा के लिए मिलेगी जो तू मेरे साथ रहकर और 7 वर्ष तक करेगा। याकूब ने ऐसा ही किया और लिया के सप्ताह को पूरा किया। तब लाबान ने उसे अपनी बेटी राहेल भी दी कि वह उसकी पत्नी हो। लाबान ने अपनी बेटी राहेल की दासी होने के लिए अपनी दासी बिल्हा को दिया। तब याकूब राहेल के पास भी गया और उसकी प्रीति लिया से अधिक उसी पर हुई, और उसने लाबान के साथ रहकर 7 वर्ष और उसकी सेवा की। याकूब की संतान 31 वचन से आगे। जब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुई, तब उसने उसकी कोख खोली, पर राहेल बांझ रही। अतः लिया गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसने यह कहकर उसका नाम रूबेन रखा, यहोवा ने मेरे दुख पर दृष्टि की है, अब मेरा पति मुझसे प्रीति रखेगा। फिर वह गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब उसने यह कहा, यह सुन के कि मैं अप्रिय हूँ, यहोवा ने मुझे यह भी पुत्र दिया, इसलिए उसने उसका नाम शिमोन रखा। फिर वह गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसने कहा, अब की बार तो मेरा पति मुझसे मिल जाएगा, क्योंकि उससे मेरे 3 पुत्र उत्पन्न हुए। इसलिए उसका नाम लेवी रखा गया। और फिर वह गर्भवती हुई और उसके एक और पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसने कहा, अब की बार तो मैं यहोवा का धन्यवाद करूंगी। इसलिए उसने उसका नाम यहूदा रखा। तब उसकी कोख बंद हो गई। 30 अध्याय पहले वचन से। जब राहेल ने देखा कि याकूब के लिए मुझसे कोई संतान नहीं होती, तब वह अपनी बहन से डाह करने लगी और याकूब से कहा, मुझे भी संतान दे, नहीं तो मर जाऊंगी। तब याकूब ने राहेल से क्रोधित होकर कहा, क्या मैं परमेश्वर हूँ? तेरी कोख तो उसी ने बंद कर रखी है। राहेल ने कहा, अच्छा, मेरी दासी बिल्हा हाजिर है, उसी के पास जा, वह मेरे घुटनों पर जनेगी और उसके द्वारा मेरा भी घर बसेगा। तब उसने उसे अपनी दासी बिल्हा को दिया कि वह उसकी पत्नी हो, और याकूब उसके पास गया। और बिल्हा गर्भवती हुई और याकूब से उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब राहेल ने कहा, परमेश्वर ने मेरा न्याय चुकाया और मेरी सुनकर मुझे एक पुत्र दिया, इसलिए उसने उसका नाम दान रखा। राहेल की दासी बिल्हा फिर गर्भवती हुई और याकूब से एक पुत्र और उत्पन्न हुआ। तब राहेल ने कहा, मैंने अपनी बहन के साथ बड़े बल से लिपटकर मल्ल युद्ध किया और अब जीत गई। अतः उसने उसका नाम नप्ताली रखा। जब लिया ने देखा कि मैं जनने से रहित हो गई हूँ, तब उसने अपनी दासी जिल्पा को लेकर याकूब की पत्नी होने के लिए दे दिया, और लिया को दासी जिल्पा को के भी याकूब से एक पुत्र उत्पन्न हुआ।
और लिया की दासी जिल्पा के भी याकूब से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब लिया ने कहा, अहो भाग्य, इसीलिए उसने उसका नाम गद रखा। फिर गाद रखा। फिर लिया की दासी जिल्पा के याकूब से एक और पुत्र उत्पन्न हुआ। तब लिया ने कहा, मैं धन्य हूँ, निश्चय स्त्रियाँ मुझे धन्य कहेगी। इसलिए उसने उसका नाम आशेर रखा। गेहूं की कटनी के दिनों में रूबेन को मैदान में दूदाफल मिले और वह उनको अपनी माता लिया के पास ले गया। तब राहेल ने लिया से कहा, अपने पुत्र के दूदाफलों में से कुछ मुझे दे। उसने उससे कहा, तूने जो मेरे पति को ले लिया है, क्या यह छोटी बात है? अब क्या तू मेरे पुत्र के दूदाफल भी लेना चाहती है? राहेल ने कहा, अच्छा, तेरे पुत्र के दूदाफलों के बदले वह आज रात को तेरे संग सोएगा। सांझ को जब याकूब मैदान से आ रहा था, तब लिया उससे भेंट करने को निकली और कहा, तुझे मेरे ही पास आना होगा, क्योंकि मैंने अपने पुत्र के दूदाफल देकर तुझे सचमुच मोल लिया। तब वह उस रात को उसी के संग सोया। तब परमेश्वर ने लिया की सुनी और वह गर्भवती हुई और याकूब से उसके 5वां पुत्र उत्पन्न हुआ। तब लिया ने कहा, मैंने जो अपने पति को अपनी दासी दी, इसलिए परमेश्वर ने मुझे मेरी मजदूरी दी है। इसलिए उसने उसका नाम इसक्कार रखा। लिया फिर गर्भवती हुई और याकूब से उसके 6वां पुत्र उत्पन्न हुआ। तब लिया ने कहा, परमेश्वर ने मुझे अच्छा दान दिया है। अब की बार मेरा पति मेरे संग बना रहेगा, क्योंकि मेरे उससे 6 पुत्र उत्पन्न हो चुके हैं। इसलिए उसने उसका नाम जबूलून रखा। तत्पश्चात उसके एक बेटी भी हुई और उसने उसका नाम दीना रखा। परमेश्वर ने राहेल की भी सुधि ली और उसकी सुनकर उसकी कोख खोली। इसलिए वह गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। तब उसने कहा, परमेश्वर ने मेरी नामधराई को दूर कर दिया है। इसलिए उसने यह कहकर उसका नाम यूसुफ रखा, परमेश्वर मुझे एक पुत्र और भी देगा। याकूब और लाबान के बीच विवाद। 25 वचन से आगे। जब राहेल ने यूसुफ उत्पन्न हुआ, जब राहेल से यूसुफ उत्पन्न हुआ, तब याकूब ने लाबान से कहा, मुझे विदा करके मैं अपने देश और स्थान को जाऊं। मेरी स्त्रियां और मेरे बच्चे, जिनके लिए मैंने तेरी सेवा की है, उन्हें मुझे दे कि मैं चला जाऊं। तू तो जानता है कि मैंने तेरी कैसी सेवा की है। लाबान ने उससे कहा, यदि तेरी दृष्टि में मैंने अनुग्रह पाया है, तो यही रह जा, क्योंकि मैंने अनुभव से जान लिया है कि यहोवा ने तेरे कारण से मुझे आशीष दी है। फिर उसने कहा, तू ठीक बता कि मैं तुझको क्या दूं, और मैं उसे दूंगा। उसने उससे कहा, तू जानता है कि मैंने तेरी कैसी सेवा की और तेरे पशु मेरे पास किस प्रकार से रहे। मेरे आने से पहले वे कितने थे और अब कितने हो गए हैं, और यहोवा ने मेरे आने पर तुझे आशीष दी है, पर मैं अपने घर का काम कब करने पाऊंगा? उसने फिर कहा, मैं तुझे क्या दूं? याकूब ने कहा, तू मुझे कुछ न दे। यदि तू मेरे लिए एक काम करे, तो मैं फिर तेरी भेड़ बकरियों को चराऊंगा और उनकी रक्षा करूंगा। मैं आज तेरी सब भेड़ बकरियों के बीच होकर निकलूंगा, और जो भेड़ या बकरी चित्ती वाली और चितकबरी हो, और जो भेड़ काली हो, और जो बकरी चितकबरी और चित्ती वाली हो, उन्हें मैं अलग कर रखूंगा, और मेरी मजदूरी में वे ही ठहरेगी। और जब आगे को मेरी मजदूरी की चर्चा तेरे सामने चले, तब धर्म की यही साक्षी होगी, अर्थात बकरियों में से जो कोई न चित्ती वाली न चितकबरी हो, और भेड़ों में से जो कोई काली न हो, यदि मेरे पास निकले तो चोरी कर ठहरेंगी। तब लाबान ने कहा, तेरे कहने के अनुसार हो। अतः उसने उसी दिन सब धारी वाले और चितकबरे बकरों और सब चित्ती वाली और चितकबरी बकरियों को, अर्थात जिनमें कुछ उजलापन था, उनको, और सब काली भेड़ों को
भी अलग करके अपने पुत्रों के हाथ सौंप दिया। और उसने अपने और याकूब के बीच में 3 दिन के मार्ग का अंतर ठहराया। और याकूब लाबान की भेड़ बकरियों को चराने लगा। तब याकूब ने चिनार और बादाम और अरमोन वृक्षों की हरी हरी छड़ियाँ लेकर उनके छिलके कहीं कहीं छिलके उन्हें धारीदार बना दिया, ऐसी कि उन छड़ियों के सफ़ेदी दिखाई देने लगी। तब छीली हुई छड़ियों को भेड़ बकरियों के सामने उनके पानी पीने के कठौतों में खड़ा किया। और जब वे पानी पीने के लिए आई तब गाभिन हो गई। छड़ियों के सामने गाभिन होकर भेड़ बकरियां धारी वाले, चित्ती वाले और चितकबरे बच्चे जनी। तब याकूब ने भेड़ों के बच्चों को अलग अलग किया और लाबान की भेड़ बकरियों के मुंह को चित्ती वाली और सब काले बच्चों की ओर कर दिया और अपने झुंडों को उनसे अलग रखा और लाबान की भेड़ बकरियों से मिलने न दिया। और जब जब बलवंत भेड़ बकरियां गाभिन होती थी तब तब याकूब उन छड़ियों को कठौतों में उनके सामने रख देता था, जिससे वे छड़ियों को देखती हुई गाभिन हो जाए। पर जब निर्बल भेड़ बकरियां गाभिन होती थी तब वह उन्हें उनके आगे नहीं रखता था। इससे निर्बल लाबान की रही और बलवंत याकूब की हो गई। इस प्रकार वह पुरुष अत्यंत धनाढ्य हो गया और उसके बहुत सी भेड़ बकरियां और दासियां और दास और ऊंट और गदहे हो गए। दो साल का बाइबल रीडिंग प्लान, 2 years बाइबल रीडिंग प्लान। मैथ्यू 5 चैप्टर 31 to 40 वर्स, जेनेसिस 12 चैप्टर। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 31 से 40 वचन तक और उत्पत्ति अध्याय 12। हम 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान जो है, ये साल हम उसको रीडिंग प्लान और हम अपने स्टडी में पर्सनल व्यक्तिगत रूप से हम उसको पढ़ के समझ के हमारे लिए परमेश्वर उसके अंदर से क्या बातें कह रहा है, हमको किस जगह में वो सुधारना चाहता है, उन वचनों के द्वारा हमारे विश्वास को वो किस प्रकार से शेप करना चाहता है, आकार देना चाहता है, ये सब कुछ परमेश्वर हमारे ज़िंदगी में करने के लिए हम 2 साल के बाइबल रीडिंग प्लान को व्यक्तिगत रूप से पढ़ेंगे, अकेले में अपने लिए खुद के लिए पढ़ेंगे और वो पढ़ने के वक्त में परमेश्वर जो हमें देता है उसके नोट्स बनाएंगे और उसको हम चलेंगे अपने लाइफ में। इसके लिए ये हमारा पर्सनल बाइबल स्टडी प्लान भी बन जाता है। तो हम 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान जो है उसके सिर्फ हम अध्याय और वचन बताएंगे। हमने सबने उसे पर्सनली अपने लिए उसका उपयोग करना है बाइबल स्टडी प्लान के समान। मैथ्यू 5 चैप्टर 31 to 40 वर्स, जेनेसिस 12 चैप्टर। मत्ती रचित 5 अध्याय 31 से 40 वचन और उत्पत्ति 12 अध्याय। प्रभु यीशु हम सब के साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।